No, but why are you constantly, the problem is with the statements that you're making even on my show, Manan साहब, आप बार बार बोल रहे जल जाता, क्यों आप लोग कोशिश नहीं कर सकते, प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, आप अपने लोगों को संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं? ये अपने लोग और दूसरे के लोग क्या होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, ये देश को कैसा बांट रही हैं आप? नहीं, आपने किस तरह की बात कही है? आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं? ये अपील जिम्मेदारी सबकी बनती है, सारे हिंदू मुसलमान सुनिए, आप लोग बांटने की कोशिश मत कीजिए। एक सबसे अपील किया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, और हम एमआईएम के फोरम से खुद अपील करते हैं कि अब राजा सिंह गिरफ्तार हो गए, हैदराबाद में हिंदू मुसलमान सबको चाहिए कि शांति से रहें और हैदराबाद को, देश को, तेलंगाना को जलाने से बचाएं। Owaisi Saab, when he spoke to me day before yesterday in an interview, he also said that he condemns those statements. But will it just stop at condemnation? Yes, we condemn these type of slogans, and we condemn the other any type of slogan which किसी की भावनाओं को ठेस जो पहुंचाता है, ऐसे किसी भी नारे से हम नफरत करते हैं। Is a huge problem. Rashmi, the question again is about members of the community. Both the sides should ensure that responsible statements are made. They have to ensure that men, young boys in particular, are not instigating violence with the kind of slogans that are being shouted, and that responsibility has to come from within. And that sense of responsibility is missing here. You're right there, I agree with you. But also what I see here is that offensive speech is being equated somehow to a call for violence. The two are not equal, and you cannot be making any comparison between the two, like some of the panelists here have been using it as a means of justifying these statements. Owaisi Saab might have, gone on record to condemn these statements, but he hasn't suspended any of those, members of his party who happen to be elected members of, administration. They are all corporators. That is very disturbing, because elected members have a far better and, they're authoritative. Whatever they say, it resonates more with the people. And these kinds of, open calls for violence and the sort of inaction against it, it only shows complicity. And that is what is concerning, because you've seen that what Tan Se Juda slogan can do overnight. You've seen it in the Nupur Sharma case, how innocent Hindus have died because no action was taken immediately. Action should have happened yesterday. It's still not happened. That's only going to, it's only pointing towards an unfortunate incident. So I believe that strong action needs to be taken against this sloganeering. So that is Mr. what Manan? My opinion is. Abdul Manan जी, yes. आपने उनका व्यू सुना, उनका कहना है कि it has to be more than just condemnation. A strong action has to be taken, because those who were indulging in these acts of sloganeering and what we have seen play out are public representatives. देखिए मैम, देयर इज नो वायलेंस इन हैदराबाद. कोई एक चींटी भी नहीं दबी, कोई एक आदमी जख्मी भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. ये फर्क होता है असदुद्दीन साहब और टीआरएस के मौजूदगी में. और जब आपके नूपुर शर्मा ने जब बयान दिया था, तो आपने देखा था कितने एहतजाज हुए थे, कितने जेलों में मारे गए थे, रांची में गोलियां चल रही थी, कन्हैया लाल का मर्डर हुआ. तो जो ये बीजेपी के लोग हैं, अगर ऐसे ही एक्शन नूपुर शर्मा पे ले लिया होता तो कोई फर्क ना पड़ता. अब हैदराबाद शांत है. असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपील किया है कि अब कोई एहतजाज नहीं होगा. जो तन से जुदा का नारा था, उसका हम खंडन करते हैं, उसको कंडेम करते हैं. और साथ ही साथ ओवैसी साहब ने ये भी कहा था कि भाई हम अगर कोई ऐसी इन हालात में इन्वॉल्व है ऐसी हरकतों में, तो हम उसके साथ ऊपर एक्शन लेंगे. ये आपके CNN पे ही बोल के गए और कई न्यूज चैनल पे बोला. अब जाहिर है वो देख रहे होंगे, जो गुनहगार होंगे उनको सजा मिलेगी. ऐसा नहीं है, हम ये नहीं है, और हम इसको नहीं देखते हैं. हैदराबाद में हमारे साथ हिंदू मुसलमान सभी होता है, तभी हम 44 सीटों पर जीतते हैं और 7 विधानसभा जीतते हैं और पार्लियामेंट जीतते हैं. हम दिलों पर राज करते हैं हिंदू मुसलमान के. हम नफरत की राजनीति नहीं करते. हमारा हैदराबाद रहा है, और हैदराबाद शहर पे हमारे लोग जो है कम से कम 10 बार जीते
और यही वजह है। और यही नहीं कि सिर्फ मुसलमान जीतते हैं, हिंदू भी जीतते हैं। तो हम हिंदू मुसलमान सबकी बात करते हैं, हमारे लोग तुम्हारे लोग की बातें आप लोग मत कीजिए। हैदराबाद में जो भी लोग हैं वो सब हमारे हैं, और हम चाहते हैं कि ना किसी हिंदू को नुकसान पहुंचे, ना किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचे, और अब शांत रहे। Yes. क्योंकि जो मेन कल्प्रिट था वो गिरफ्तार हो। Yes, that certainly is a matter of concern. Who is the main culprit according to you, Mr. Manan? राजा Okay. मिस्टर राजा वाज द मेन कल्प्रिट। Okay. और अगर वो बाहर होता तो जाहिर है, जैसे नूपुर शर्मा के मामले में सैकड़ों लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों पर मुकदमा चला, बुलडोजर चला, और जो है रांची में 2 लड़के मार दिए गए, और जाने क्या क्या उसका रिपरकशन हुआ, वही होता। No, but तो yes, so Raja has been rearrested. What about all those who were protesting yesterday and shouting those slogans? Yes, they were protesting and police has arrested them. और इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो गलत नारे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन ये है कि राजा ने बहुत बड़ी गलती, मान लिया कि मोहम्मद फारूकी ने कोई गलती की थी तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज करते, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते, उसके खिलाफ जो है धरना करते, प्रदर्शन करते। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, प्रॉफिट को आप गाली दोगे अगर मोहम्मद फारूकी साहब नाराज हो? कैसी बात करती हैं? नूपुर शर्मा पता चला कि लीगल उनकी जो है स्पोक्समैन और अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की, और राजा उनका फ्लोर लीडर है, कोई सिंपल आदमी नहीं है। अगर कोई नादान लड़का होता जो नौजवान होता, नारा लगाता, समझ में आता। भाजपा ने तो उनको सस्पेंड कर दिया, जैसे ही उन्होंने बयान दिया प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, तो भाजपा ने तो सस्पेंड कर दिया। आपने अपने कॉर्पोरेटर के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? भाजपा ने सस्पेंड क्या कर दिया? भाजपा जो है ऐसे सस्पेंड करती है। नूपुर शर्मा के लिए भाजपा ने क्या किया? ये तो कहिए कि वहां एक सेकुलर सरकार है। अगर अमित शाह की तरह यहाँ भी फोर्स उनके हाथ में होती तो 3-5 करके कोर्ट कचहरी में फंसा के और मामले को दफन करके गिरफ्तारी ना हो। इस देश में लड़ाई सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनिज्म है। टीआरएस की सरकार, हैदराबाद की सरकार सेकुलर है, यहाँ की सरकार कम्युनल है। दिल्ली